वेलकम टू ज्ञानधारा पीपल टीचर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी में जितने भी एसेंशियल्स टॉपिक थे वो मैंने कवर कर दिए हैं आपके लिए। प्लीज़ वीडियोस को वॉच करिए और अपने नोट्स आप खुद बनाइए विद सेल्फ स्टडी। मैंने आपको जो भी वीडियोस में बताया है वो बिल्कुल ही एक जिस्ट है उन टॉपिक्स का, और आप डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो या सॉरी मतलब डिटेल में अगर आप उसकी नॉलेज गेन करना चाहते हो तो यू हैव टू रीड योर ओन बुक्स प्लस यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, तभी आप बहुत क्लियरली किसी भी टॉपिक को समझ सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए इन चीज़ों के तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा सकती हूँ इफ़ यू विल कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड हम अब न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एंड हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। तो व्हाट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज, एज यू ऑल कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन classroom scenario and this is the future. So blackboard is now converting into smart boards. So this is a kind of technology which we are introducing in our educational sector. So first thing, meaning of educational technology. If we learn separately about the definition, so there are two terms. First is education and second is technology. Okay, so education means to learn, and what technology is application of science in practical form. So when we combine these two, we can learn or we can earn the meaning definition, yani application of scientific process to man's learning condition is called educational technology. This definition is given by Robert A. Cox in 1970. So very easy definition, and this is the best definition of educational technology, that the scientific process, if it is applied in learning conditions, that is called educational technology. Easiest definition, my favorite one, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको बताया। और भी बहुत सारी definitions हैं कि एक डेफिनेशन और है जो कि इजी है, अच्छी है, और इस टर्म को इजीली समझ सकते हैं हम, दैट ईटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी conceived as a science of techniques and methods by which educational goals can be realized. Means all the scientific technique. The definition is given by Shiv K. Mitra. So these two definitions clearly indicates that whatever science it takes to learn is educational technology, or it is the science of techniques and methods by educational goals can be realized. I hope it is clear to you all. Now, nature of educational technology. What exactly educational technology do? Science
or art? The question is, what is teaching? It is art or it is science? So, what educational technology believe it is science as well as art. So, science is fundamental subject in educational technology. Second, it gives importance to practical subjects. मतलब whatever we can do in a practical way. सिर्फ लेक्चर मेथड की बात नहीं करती है ये टेक्नोलॉजी, हर चीजें प्रैक्टिकल चीजों की बात करती है. इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच. ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू वर्क किया जाता है. हम स्टेप बाय स्टेप ही वर्क करते हैं इसमें. फोर्थ ये है कि इट इज एम टू रियलाइज educational goals. It is aimed to realize educational goals. Then fifth is student plus teacher plus technology. इन तीनों की बात ये करती है और इक्वली एम्फेसाइज करती है तीनों पर ही. इट इज अ इवॉल्विंग सब्जेक्ट जो अभी ग्रो हो ही रहा है. मैंने आपको सबसे पहले फोटो में ही दिखा दिया था कि अभी ब्लैक बोर्ड इज नाउ कन्वर्टेड टू स्मार्ट बोर्ड. और आने वाले टाइम पर वो जो स्क्रीन ऐसे वाली स्क्रीन होती है ना जिसमें डिजिटल पेन से लिखा जाता है, और बेहतर कंडीशन में एजुकेशन टेक्नोलॉजी आने वाली है. तो दिस इज बेसिकली द नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दैट साइंस बेसिकली दे इंक्लूड साइंस in art subject of teaching. Then it is only gives only importance to practical. Whatever we learn can be given. Now there is a systematic process. It step by step आप जा सकते हो इसमें. और एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है. कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से स्टार्ट कर दिया. नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. स्टूडेंट टीचर और टेक्नोलॉजी तीनों का ट्रायो वर्क करता है टेक्नोलॉजी पढ़ाने के टाइम पर या हम जब यूज़ करते हैं. और एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है जो जिसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. Now, next, what are the assumptions of educational technology? Educational technology ये मानती है कि जो humans हैं, they work like a machine. Therefore, scientific principles can be applied successfully in field of education. क्योंकि हम कई बार कहते भी हैं कि हम मशीन्स की तरह काम करते हैं, तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें भी हम एजुकेशन फील्ड में ईजिली अप्लाई कर सकते हैं. और इसका करने का गोल क्या है? मॉडिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है. तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी दे से दैट ह्यूमंस इफ कैन वर्क लाइक अ मशीन, देयरफॉर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैन easily applied successfully in the field of education for the modification or rectification of the human behavior so that we can achieve a better education. What are the factors that influence educational technology?
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कई फैक्टर्स हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कई हद तक इफेक्ट करती है इसको, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए डेफिनेटली मनी चाहिए होता है, एज वेल एज एक एजुकेट एफर्ट चाहिए होता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब ये है कि इसमें इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट एंड टेंडेंसीज इनकी, स्टूडेंट, टीचर और स्कूल, इनकी इंटरेस्ट की बात होती है कि कितने हद तक ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशनल फैक्टर्स। एजुकेशनल फैक्टर्स ये हैं कि जो टीचर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे रोल प्ले करती है कि वेदर अ टीचर इज इक्विप्ड विद आईसीटी और नॉट। इफ अगर टीचर को टेक्नोलॉजी आती है, उसकी ट्रेनिंग में टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है, तो डेफिनेटली वो अपने पढ़ाने के तरीकों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। हम सभी जानते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए वी रिक्वायर अ मनी, सो टेक्नोलॉजी के लिए फाइनेंस ज़रूरी होता है, और अगर हमारे पास अच्छा फाइनेंस है तो हम अच्छी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। कोई भी टूल या कोई भी जो कह सकते हैं ना, नीदर टूल कैन नॉट बी ब्रॉट बाय फिनेंस। कोई भी जो टूल है वो बिना वित्तीय मदद के आप नहीं बना सकते, तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट इज सोशल कल्चरल फैक्टर्स। सोशल कल्चरल फैक्टर्स की बात ये होती है कि मतलब जो लोग हैं वो कितना अडॉप्ट करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी को। जैसे कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, जैसे मदरसे वगैरह हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल पुराने ही तरीके अपनाए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना। और कई संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ पे भी श्लोक वगैरह से सिखाया जाता है, तो वो वहाँ पे टेक्नोलॉजी को कम से कम अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है ऑन द सोसाइटी, वेदर दे वांट टू अडॉप्ट द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन देयर एजुकेशनल फील्ड और नॉट. So, if the school environment will be pressurized for adopting the technology by the people of the society, guardians, and uh, educationists, consequently, the school will be able to play an effective role. But it should be the call of society for the schools to adopt the technology. And the last one is technological factors. Latest discoveries और एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अगर एजुकेशन की फील्ड में हो रहे हैं तो वो कितने हद तक मतलब हमारी फील्ड में इम्पॉर्टेंट है, ये भी निर्भर करता है कि साइंटिस्ट जो हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं, वो नहीं फील करें। तो दीज आर द फैक्टर्स which influence the educational technology: political factors, psychological factors, educational factors, economic factors, technological factors, and social and culture factors. So these are the factors which influence the educational technology. Now, development of educational technology. So सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी टर्म आया वो था 1926 में सिडनी प्रेस से। इन्होंने सबसे पहले यूज किया ओहियो स्टेट
यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में, जिन्होंने एक टीचिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सबसे फर्स्ट इन्होंने यही किया। इसके बाद लगातार कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जो नेक्स्ट इफेक्टिव प्रयास था वो था सन 1930 में, ओ सॉरी 19 नॉट 1930 1950, बीएफ स्किनर द्वारा। इन्होंने कई सारी एजुकेशनल थ्योरीज दी और थ्योरीज के बाद डिफरेंट प्रोग्राम्स इन्होंने क्या किया, प्रोग्राम्ड लर्निंग डिवाइसेस बनाए, जिसपे उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके आधार पर कई सारी थ्योरीज के आधार पर लर्निंग डिवाइसेस बनाए, और उस कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए उस फील्ड में। फिर उसके बाद कई सारी कंट्रीज में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट लेना मतलब स्टार्ट किया, और कई सारे टीचिंग एड्स, इनकी इन थ्योरीज के बाद कई सारे टीचिंग एड्स, जैसे जो कि एजुकेशन फील्ड में इस्तेमाल भी नहीं होते थे, जैसे सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो, है ना, कंप्यूटर, वीसीआर, इन सब का प्रयोग, प्रोजेक्टर्स, तो इन सब का प्रयोग जो है वो भी टीचिंग फील्ड में होने लगा। और फिर 1966 में एनसीईटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी, बनाई गई, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अमेरिका द्वारा। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स थे, वहाँ पर ये बनाना शुरू किया गया, काउंसिल्स बनाई गई, और इस तरीके से एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बुक्स लिखी जाने लगी, लैंग्वेज लेबोरेटरी बनी, लैंग्वेज लेबोरेटरी फॉर्म होने लगी। इस तरीके से धीरे धीरे करके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, और मीडिया का प्रयोग करना शुरू करा। मीडिया का यूज़ होना शुरू हुआ, और भारत में भी, इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनआईई ने भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के में वर्क करना स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत माइक्रो टीचिंग, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आने लग गई हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता रहा है और अभी भी हो रहा है। पहला शैक्षिक उपग्रह भारत का एड्यूसैट, आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, EDUSAT भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह, इंडियन फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट, ये भी स्थापित किया जा चुका है। तो और हम आगे तरक्की की तरफ अभी भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा ही रहे हैं। So this is a brief introduction of educational technology. What educational technology is, what are the factors, what are the assumptions of the technology, what is the nature and what is the meaning. तो I hope आपको ये introductory topic educational का टेक्नोलॉजी का क्लियर हो गया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञान धारा, एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम पता करेंगे कि what are the different types of educational technology, what are the different objectives and approaches of educational technology. Till then, keep writing your notes, and if you have any problem, then ask me in the comment section. Thank you for watching Gyandhara.